God. How many Praise of you are God. happy? कितने लोग खुश हैं? Man. My mic volume doesn't seem happy. Thank you, Jesus. थोड़ा और. Thank you, Jesus. We love you, Lord. धन्यवाद यीशु, हम आपसे प्रेम करते हैं. Father, we praise you. Thank you for this wonderful year that we had. धन्यवाद पिता, एक सुंदर सा वर्ष आपने हमें दिया. Thank you for all the things that came and went in our lives. Lord. धन्यवाद कि बहुत सारी चीज़ें जो आई और गई हमारे जीवन में, But thank you that you remained the same, Lord. लेकिन धन्यवाद करते पिता कि आप सेम रहे पूरे साल में. Jesus, we thank you that you are the same yesterday, today, and forever. धन्यवाद यीशु कि आप कल, आज और युगानुयुग हमेशा एक समान है. Thank you that your faithfulness never ceases in our life, Lord. धन्यवाद पिता कि आपकी विश्वास योग्यता कभी रुकती नहीं. Thank you that you are always loving us and your love is never withheld from us. धन्यवाद पिता हमसे प्रेम करने के लिए और आपके प्रेम को हमसे छुपा के नहीं रखने के लिए. Holy Spirit, we submit ourselves to you right now, Lord. हो पवित्र आत्मा, हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं. We yield ourselves to you as instruments of righteousness. हम अपने आप को आपके हाथों में धार्मिकता के काम करने के लिए एक पात्र के रूप में समर्पित करते हैं. Let your words flow, Lord. आपके वचन, आपके शब्द हमारे द्वारा बहे. You know this room, you know what you want to say to these people, Lord. आप जानते हैं इस कमरे में उपस्थित लोगों को, उनके साथ क्या बात करना आप जानते हो. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से. Amen. आमीन. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yeah. धन्यवाद यीशु. So we'll go to Psalms 34 हम जाएंगे भजन संहिता उसका 34. and we'll just read through and then we'll go as the Holy Spirit leads us. हम उसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में देखेंगे पवित्र आत्मा हमें कैसे चलाते हैं. Amen. आमीन. How many of you are thankful today? How many of you are grateful for your life? कितने लोग के मन में धन्यवाद है आपके जीवन के लिए परमेश्वर के प्रति. I'm seeing some people are not lifting their hands. मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि उनके हाथ उन्होंने खड़े नहीं किए हैं. We'll have to send Brother Clifford to you. Thank you, Jesus. Let's धन्यवाद read. यीशु. हम पढ़ेंगे. Let's all open to Psalms 34. हम सब भजन संहिता उसका 34 खोलेंगे. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी. My soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे. Oh, magnify the Lord with me and let us exalt his name together. मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें. I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears. मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया. I sought the Lord and he heard me and he delivered me from all my fears. मैं परमेश्वर को मैंने खोजा और उसने मेरी सुन ली और मुझे मेरे सारे डर से उसने मुझे छुटकारा दिया. From all my fears. सारे डर से उसने मुझे छुटकारा दिया. They looked to him and were radiant and their faces were not ashamed. वचन 5, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया. They looked to him and they were radiant and their faces were not ashamed. जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसको देखा, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया. This poor man cried out and the Lord heard him इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया and saved him out of all his troubles. और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया. The angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them. यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है. Oh, taste and see that the Lord is good. परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है. Blessed is a man who trusts in him. क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है. Oh, fear the Lord, you his saints. There is no want to those who fear him.
वचन 9, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। Oh, fear the Lord, all you his saints. There is no want to those who fear him. वचन 9, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी भी बात की घटी नहीं होती। The young lions shall lack. The young lions lack and suffer hunger. जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, But those who seek the Lord shall not lack any good thing. परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। The young lions with all of their might, with all of their strength, lack and suffer hunger. जो जवान सिंह है, उनके पूरी सामर्थ होने के बावजूद वो भूखे भी रह जाते हैं। But those who seek the Lord shall not lack any good thing. लेकिन यहोवा के जो खोजते हैं, यहोवा का जो खोजते हैं, उनको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। Amen. आमीन। Our God is faithful. हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। Here Paul is, David is saying, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. या दाऊद कह रहा है कि मैं हमेशा हर समय परमेश्वर को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। You know, it's very important for us to praise God and to be thankful always. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमेशा परमेश्वर की स्तुति करना और हमेशा परमेश्वर के प्रति धन्यवाद देना। Because being grateful or being thankful is like a pulse. जो धन्यवादित होना एक दिल की धड़कन, हाँ. दिल की धड़कन के समान है। Like when people go to the doctor, they'll check the pulse to see if the BP is fine, if the heart is working fine. तो जैसे अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है और सबसे पहले डॉक्टर ये चेक करता है कि आपके वो नस को दबा के देखता है कि जो आवाज़ है दिल की धड़कन का वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। So gratefulness and thankfulness is like your spiritual pulse. तो वैसे ही आत्मिक तौर से परमेश्वर को धन्यवाद देना वो आपकी आत्मिक धड़कन के समान है। In day-to-day life, if you're not finding yourself being thankful and grateful and just praising God for what He is doing, then that means something is wrong with your relationship with God. अगर आपके रोज के दिन में अगर आपको ऐसा मौका नहीं मिल रहा है, आप सोच नहीं पा रहे हो कि परमेश्वर को आपको धन्यवाद देना है, तो कुछ तो गड़बड़ है उस जगह पर। How many of you are understanding what I'm saying? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? If you're not catching yourself being thankful for everything that the Lord has done daily, day in and day out, just praising Him, thanking Him, reminding yourself, that means there is something wrong with your spiritual life. आपके जीवन में रोज जो कुछ हो रहा है, अगर आप उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पा रहे हो, उसका मतलब है कि आपके आत्मिक जीवन में कुछ तो गड़बड़ है। And being unthankful is just first step in the process of degradation. और धन्यवाद न देना ये पहला कदम है आपके नीचे जाने का। Let's go to Romans 1. हम जाएंगे रोमियो उसका पहला अध्याय। So here we'll read from verse 21. रोमियो पहला अध्याय उसका हम 21 से पढ़ेंगे। Paul here is describing generally the way man degraded and went away from God. He's basically describing a general man, not born again or unborn again, general man. तो यहाँ पर पौलुस एक साधारण मनुष्य है, विश्वासी के बारे में नहीं, एक साधारण मनुष्य, उसके विषय में कह रहा है कि वो कैसे नीचे नीचे जाते गया और परमेश्वर से वो दूर हो गया। So verse 21 we'll read. हम वचन 21 पढ़ेंगे। It says, because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. रोमियो 1 उसका 21, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। Professing to be wise, they became fools. 22 वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। And changed the glory of the incorruptible God into an image made like a corruptible man. वचन 23, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। They changed the glory of this incorruptible God and turned into an image made by a corruptible man,
birds, four-footed animals, and creeping things. तो जो अविनाशी परमेश्वर की जो महिमा है, उन्होंने मनुष्य जो उसका विनाश होने वाला है उसके हाथों से बनाई हुई चीजों में उसकी महिमा को उन्होंने रचा. So if you've ever wondered, how did we have so many idols and different gods emerge in this world, then here it gives like a brief history of how these gods evolved. तो अगर आपको यह प्रश्न है कि इतने सारे जो हम संसार में देखते हैं, इतनी मूर्तियाँ क्यों है, इतने सारी चीज़ें क्यों है, तो उसका उत्तर हमें यहाँ देखने को मिलता है कि मनुष्य ने परमेश्वर की महिमा को पक्षी और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त में उसको बना डाला, उसकी महिमा को उसमें डाल दिया. So they went away from God, not being thankful. They went so far away that they turned that image of this invisible, amazing, incredible God. They rejected that and they decided we will create our own gods with whatever we can see around us. तो उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद न देकर जो परमेश्वर का जो अद्भुत परमेश्वर है, जो अविनाशी परमेश्वर की महिमा है, उसको उन्होंने अपने हाथों से बनाई हुई जो मूर्तें हैं उनमें उन्होंने उसकी महिमा को बदल डाला. But the starting point of is was when they became unthankful. लेकिन उसकी शुरुआत यहाँ से हुई कि जब उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद देना बंद कर दिया. Verse 21 says, because although they knew God, they did not glorify Him as God. वचन 21 कहता है कि इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया. Nor were thankful. उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया. That is a process that we all go through. ये ही एक प्रोसेस है जिसके साथ हम जाते हैं. Now today we may not go as far as going and creating our own gods. तो आज हम इतना दूर नहीं जाएंगे कि हम जाकर खुद से एक मूर्त बना देंगे. But alternatively we can exalt things and magnify them and make them greater than God. तो हम मूर्त बनाने के बजाय हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी और चीज को बड़ा कर सकते हैं और वो चीज हमारे परमेश्वर से भी बड़ी हम हमारे जीवन में कर सकते हैं. It says, because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful. तो यहाँ वचन 21 में फिर कहता है कि इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और न धन्यवाद किया. So it's like you know God. उसका मतलब है कि आप परमेश्वर को जानते हो. You know what God says about how He wants to prosper you, how it's the will of God to heal everyone always. आप जानते हो कि परमेश्वर की इच्छा है कि आप समृद्धि में चलो, आप दैवीय आरोग्य में चलो, ये सारी चीजें आप जानते हो. How it is the will of God for your family to be very blessed and for there to be peace and harmony and a mutual growth. परमेश्वर आप जानते हो कि परमेश्वर की इच्छा है कि आपके परिवार में हमेशा शांति बनी रहे और परमेश्वर की महिमा बनी रहे. But in the middle of that, when we see symptoms that are trying to disturb things in our finances, in our health, in our relationships. तो लेकिन अगर हम कुछ भी चीज़ें देख रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य के विषय में, हमारे समृद्धि के विषय में या फिर हमारे परिवार के विषय में जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जा रही है. And in that moment, if we are not glorifying God as being God, अगर उस क्षण में हम परमेश्वर को कि जैसा वो परमेश्वर है उसके लिए हम अगर परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर रहे, उसकी स्तुति नहीं कर रहे हैं. let's read this again. हम फिर से इसको पढ़ेंगे. Because though they knew God, they did not glorify Him as God. कि उन्होंने परमेश्वर को जानने के बावजूद उन्होंने परमेश्वर की महिमा नहीं की. How do you glorify God as God? परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के रूप में हम कैसे कर सकते हैं? It says they did not glorify that God as being God. यहाँ वचन कहता है कि वो परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य उसकी महिमा, उसकी बढ़ाई नहीं की. How is it possible for you to not glorify God as being God? कैसे संभव है कि परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के योग्य हमने करनी है? This word glorify is similar to magnifying something. तो जो महिमा, जो ग्लोरीफाई शब्द है उसका मतलब है कि बढ़ाना, मैग्नीफाई करना. I think I'll read this in a different translation as well. मैं दूसरे ट्रांसलेशन में इसको पढ़ूंगा. For even though, in Amplified it says, for even though they knew God as the creator, they did not honor Him as God or give thanks for His wondrous creations. On the contrary, they became worthless in their thinking. तो उन्होंने परमेश्वर को
एक सृष्टिकर्ता के रूप में जानने के बावजूद उन्होंने परमेश्वर की वैसी महिमा नहीं की, उस वो जानते हुए परमेश्वर की महिमा नहीं की। So it says they did not honor him as God. They did not honor what he was, who he is, and what he could do as God. उन्होंने परमेश्वर को आदर नहीं दिया कि वो क्या है, वो किस रूप में बना है, उसका उन लोगों ने परमेश्वर को आदर नहीं दिया। Now, what I'm going to say, for the sake of not diluting it, I'll say maybe along one theme, but this will apply to your relationships, to your marriage, to your finances, to your health, to your spiritual life, to everything. आपके मैं इसको एक साधारण वाक्य में बताऊंगा जो लागू होता है आपके आर्थिक क्षेत्र में, आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपके परिवार के क्षेत्र में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में ये वाक्य लागू होता है। So I'm feeling like preaching to myself. तो मुझे लग रहा है कि मैं खुद को प्रचार कर रहा So I'll हूँ। talk about career. So like say you have a career or you have this vision from God and you're walking in this path. तो आपको परमेश्वर के द्वारा आपको एक दर्शन मिला है और उस दर्शन की ओर आप काम कर रहे हो। And you have all these promises of God and you're not seeing them fulfilled as fast as you want. और परमेश्वर ने आपसे कुछ वायदे किए हैं और लेकिन वो वायदे को आपको जैसे जिस तेजी से आपको चाहिए कि वो वायदे पूरे हो, वो आप नहीं देख पा रहे हो कि वो वायदे पूरे हो रहे हैं। And in this process now you have a temptation where you can glorify your situation as being greater than God, and in that process you're not glorifying God as God. और अब ऐसा हो रहा है कि आप परमेश्वर के वायदे को पूरा होते हुए नहीं देख रहे हो, तो उस क्षण में आप परमेश्वर के वायदे को परमेश्वर को बाजू में कर कर आप जिस परिस्थिति से जा रहे हो, आप उस परिस्थिति को बड़ा कर रहे हो, और जैसे परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए वैसे परमेश्वर को आप महिमा नहीं दे रहे हो, लेकिन आपकी परिस्थिति को आप महिमा दे रहे हो। How many of you understood? कितने लोग को समझा? How many of you are lying? कितने लोग को समझ रहा है? नहीं, how many of नहीं you are सॉरी, lying? कितने लोग झूठ बोल रहे हैं? Everyone understood? सबको समझा? So you have a problem that comes before you. तो आपके सामने कोई एक समस्या है। It could be like you're not growing, you're not having the appraisals that you want, you're not getting the positions that you want, or you're not able to start the business that you want as per the promise of God. तो ऐसा हो सकता है कि आप आपके नौकरी के क्षेत्र में एक ही जगह पर आप रुके हुए हो, आपको जो पगार आपका बढ़ना चाहिए वैसे नहीं बढ़ पा रहा है, आप जैसे सोच रहे थे कि आपकी ग्रोथ होगी वैसे आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। And in this process now there comes a temptation where this problem wants to present itself as being bigger than God. तो उस क्षण में आपको ये मोह आता है कि आपके सामने जो समस्या है कि आप अटके हुए, आपका पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, वो अपने आप को परमेश्वर से बड़ा करने का प्रयत्न करती है, वो आपको मोह दिखाता है। See, the very fact that there is fear and worry coming for a situation, there is turmoil, there is anguish coming for a situation, that very fact is showing that you are not honoring God. अगर कोई परिस्थिति में आपके मन में डर आ रहा है या फिर आपके मन में ऐसा बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, तो वो दिखा रहा है कि आप परमेश्वर के रूप में आदर नहीं कर रहे हो, आप परिस्थिति को बड़ा कर रहे हो। Because if, like, let's say, you have issues in your finances, you're struggling financially, and you're not able to eat, you're not able to fuel up, you're going through all of these issues. तो उदाहरण के लिए आप किसी आर्थिक परिस्थिति से जा रहे हो जहां पर आपके पास पैसे नहीं है, And in that moment, all of the fear and anguish that you're feeling, that is proof that in that place you've not glorified God as being God. अगर उस क्षण आपको डर लग रहा है, आपके मन में ऐसा गड़बड़ सी महसूस हो रही है, उसका मतलब है कि वो दिखा रहा है कि आपने उस जगह पर परमेश्वर को महिमा नहीं दी, परमेश्वर को आदर नहीं दिया। Because what has happened is, because of your senses, your five senses, it's telling this fact so loudly that you've exalted this problem as being bigger and more mightier than God. क्योंकि उस समय क्या हो रहा है कि आपकी जो इंद्रियां है, आपके जो देखना सुनना, वो सारी चीजें आपको दिखा रही है कि ये जो परिस्थिति है ये परमेश्वर से बड़ी है। Are you understanding? So समझ in रहे? this process, in this way, when we begin to magnify situations as being bigger than God, that's what these people were doing here. तो ये जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जैसे आपकी परिस्थितियों को आप बड़ा कर रहे हो परमेश्वर से, वैसे ही ये लोग भी कर रहे थे। जैसे हमने रोमियो 1:21 में पढ़ा कि उन्होंने परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में महिमा न देके अपने हाथों से मूर्तें बनाकर उसको परमेश्वर की महिमा दी। Because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful.
तो वचन 21 में हम फिर से पढ़ेंगे कि उन्होंने परमेश्वर को जाना, फिर भी उन्होंने परमेश्वर को परमेश्वर के योग्य उसको जो आदर मिलना चाहिए वैसा आदर वैसी बड़ाई नहीं दी. That means that situation became so big that they could no longer respect and honor God as being this almighty God who is able to change situations in a second, who parts the Red Sea with just his breath. तो उन्होंने उनकी परिस्थिति को इतना बड़ा कर दिया, परमेश्वर से भी बड़ा कर दिया, जो महान परमेश्वर जो उस परिस्थिति को कब्जे में करने में सक्षम है, जिसने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया, उसको भी उन्होंने परमेश्वर के रूप में न जानकर उनकी परिस्थिति को परमेश्वर से बड़ा कर दिया. Because that's how the fallen human's mind works naturally. इस रूप से जो मनुष्य है, जो पाप करने के बाद का जो मनुष्य का जो स्वभाव है, जो विचार करने की क्षमता है, वो इस रीति से सोचती है. You know, any of you ever got a call from your loved one in the middle of the night when you were sleeping? अगर रात में आपको 12-1 बजे आपके परिवार में से आप जिनसे प्रेम करते हैं उनका अगर आपको रात को 12-1 बजे फोन आता है. Anyone got a call? किसी को फोन आया ऐसा? मेरे को ही आया क्या सबका कॉल? Like when you're not expecting and you just suddenly get a call from a relative. कि आप अपेक्षा भी नहीं कर रहे थे और आपके किसी रिश्तेदार से आपको रात के 2-3 बजे फोन आता है. ठीक है, इमेजिन कर लो. अगर कॉल नहीं आया, इमेजिन कर लो. अगर आपको फोन नहीं आया, so you can just imagine. So say you're sleeping and you get a call in the middle of the night from this relative. And what are your first thoughts before picking up the call? तो आप कल्पना कीजिए कि आप सो रहे हो और आप सो रहे थे तो रात के 12-1 बजे आपके रिश्तेदार से फोन आता है, तो आपके मन में पहला विचार क्या आता है? Do you think अरे सैम का प्रमोशन हो गया इसलिए कॉल कर रहा है मेरे को? Do you think on the positive side or is it like a fear, a surge of fear that you feel? तो आपको जब ऐसा फोन आता है तो आप क्या ऐसे खुश होकर अरे हाँ इसके साथ कुछ तो अच्छा हुआ इसलिए उसने मुझे रात को 12 बजे फोन किया, ऐसा सोचते हो, या आपके मन में डर आता है कि अरे कुछ तो गड़बड़ है इसलिए इसने मेरे को फोन किया? That shows how our mind works, how our mind reacts, right? ये दिखाता है कि कैसे हमारा जो दिमाग है, हमारा मन कैसे काम करता है, वो दिखा रहा है. That's also the sign of an unrenewed mind. और ये दिखाता है कि जो मन नया नहीं हुआ है वो उसका चिन्ह है कि जब आपको ऐसा कुछ होता है तो आपके मन में एकदम सबसे पहले जो ख्याल आ रहा है वो डर का है. Like you know, I am notorious for tracking my family's location on the Google Maps. तो मैं हमेशा फैमिली के लोकेशन को ट्रैक करता हूँ. Like if I call them, they don't pick up. I'll go to maps and try to see where they are. तो अगर मेरे जो परिवार के लोग हैं उनकी लोकेशन मैंने ऐड करके रखी है कि अगर मैं इनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं जाके उनका पहले लोकेशन चेक करता हूँ. And when I catch myself responding in fear, it's like that course correction is coming, but I'm still growing and coming out of it. तो अगर मेरे मन में ऐसा डर आता है तो मैं वो डर को उस समय अपने कब्जे में ले लेता हूँ और उसके द्वारा मैं मेरा कोर्स जो मेरा मार्ग है उसको मैं सीधा करते जा रहा हूँ. But this is to show that the natural response of an unrenewed mind is to glorify the situation as being bigger than God. In that moment you forget who God is or what He can do or how powerful He is. तो जो मन जो नया नहीं हुआ है उसका चिन्ह यही है कि मैं मेरी परिस्थिति को परमेश्वर से बड़ा कर रहा हूँ. मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर इस परिस्थिति को कब्जे में करने में सक्षम है, फिर भी उस क्षण मैं मेरी परिस्थिति को बड़ा कर रहा हूँ परमेश्वर से. So it's like this escalator in the malls we've all seen, right? तो ये उस एस्केलेटर के समान है जो मॉल में होता है, जो ऊपर लेके जाता है, जो सीढ़ियाँ है वो ऊपर लेके जाती है. Anyone seen an escalator? किसी ने देखा है क्या एस्केलेटर को मॉल में? जिनने हाथ नहीं उठाया, सीढ़ी देखा है कभी? So you have these malls in which you have these सीढ़ीज that go up or down on its own. तो मॉल में हम देखते हैं कि एस्केलेटर होता है जो आपको एक मंजिले से दूसरे मंजिले पर ऐसे सीढ़ियाँ होती है जो अपने आप चलती है, आप उस पर केवल खड़े होते हो, आपको अपने आप ऊपर या फिर नीचे वो लेकर आती है. And I'm sure many of you would have watched the video of this one woman who's trying to go up on the escalator that tries to go down. तो आपने देखा होगा हमेशा कि कोई एक वीडियो देखा होगा कि जिसमें एक स्त्री है जिसको ऊपर जाना था और नीचे जाने वाली सीढ़ी पे जा रही है और वो प्रयत्न कर रही है ऊपर जाने का. And she's just walking and she's never able to reach the top. और वो प्रयत्न कर रही है ऊपर जाने का, लेकिन क्योंकि सीढ़ी नीचे जा रही है तो वो ऊपर कभी भी नहीं पहुंच पाएगी. Well, that's how an unrenewed mind works. इसी प्रकार से जो नया न हुआ मन है वैसे ही काम करता है. It tries to go to the worst possible scenario. वो एकदम एकदम बेकार जो परिस्थिति है उसमें जाने का प्रयत्न करता है. And in going to that worst possible scenario, it completely negates God in the mind.
और जब उस परिस्थिति में आपको लेके जाता है, उस क्षण परमेश्वर को पूरी तरह से आपका मन नकार देता है. You know, I know you guys may lie and not lift your hand, but many a times I've like caught myself acting in fear in such a way, and it's like I really felt ashamed कि भाई, are you really a son of God the way you are acting? तो मुझे नहीं पता आप झूठ बोलोगे या सच बोलोगे, क्योंकि मैंने खुद के बारे में ये देखा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने खुद को, मेरा जो प्रतिसाद था वो डर के रूप में मेरा बाहर आया, और उस समय मुझे प्रश्न आया कि सच में मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ या नहीं. It's like a situation comes and you react in such a way where you've reacted completely out of fear and dread and full of unbelief, and then you stand back and you watch yourself. You're like, how could I react this? You know, I have a relationship with God, I trust Him, and how could I react in such unbelief? तो ऐसा कोई परिस्थिति आई जिसके प्रतिसाद के रूप में मेरे अंदर से डर आया बाहर, और उस समय मैं डर के रूप में मेरा प्रतिसाद दिया, और कुछ दिन होने के बाद में जब मैं खुद को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद मैं प्रतिसाद कैसे दे पाया, डर के साथ में मेरा प्रतिसाद कैसे आया. And then in moments like that, then you repent in a hurry. Like, you know, you repent and ask God to remove that. और उस क्षण जब हमको ये महसूस होता है तब हम उसका पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर आप इसको दूर कर दीजिए. But the point of saying this is your mind is like an escalator going downhill if you don't renew it. आपका मन उस एस्केलेटर के समान है जो सीधा नीचे आ रहा है, अगर आप उसको नया नहीं करोगे तो. Here again coming to Romans 1:21, it says, because although they knew God, they did not glorify Him as God. वचन रोमियो 1:21 फिर से हम पढ़ेंगे. इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया. They stopped glorifying Him as God. They stopped admiring the works of God. They stopped admiring who God is. उन्होंने परमेश्वर की उसकी आदर करना, उसकी बढ़ाई करना उन्होंने रोक दिया, उसको रोक दिया. That's why it's very important that you praise God and you be thankful every day, because you never want to stop that process. इसलिए परमेश्वर का स्तुति करना, उसको धन्यवाद देना रोज होना चाहिए, क्योंकि हमको इस प्रोसेस में नहीं जाना है. For situations that you're seeing it's not changing for years, start thanking God even more for those things. तो कोई परिस्थितियां जो सालों से आप देख रहे हो कि नहीं बदल रही है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए. Because if you keep glorifying God in your mind will become bigger than all of your problems, and Amen. faith will rise inside you. आमीन. जब आप ऐसा करना शुरू करोगे, आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हो जो परिस्थिति सालों से नहीं बदले उसके लिए, तो आप क्या करो, धीरे धीरे करके आप आपके मन में परमेश्वर को बड़ा कर रहे हो उस परिस्थिति से, और आपका विश्वास उसके द्वारा बढ़ेगा जिसके द्वारा फिर वो परिस्थिति बदलेगी. We'll go to Colossians 2. हम जाएंगे कुलुस्सियों उसका 2. Colossians 2 verse 7. कुलुस्सियों 2 उसका 7. It says here, rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. कुलुस्सियों 2 उसका 7. और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो. So in English it says, as you have been taught, rooted and built up in Him and established in faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. तो यहाँ कह रहा है कि तुम मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुमको सिखाया गया है वैसा ही विश्वास में तुम मजबूत होते जाओ, दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो. So basically what it's saying here is, you be established in the faith and you abound in it with thanksgiving. तो यहाँ उसको कहना क्या है कि तुम तुम्हारे विश्वास में मजबूत हो जाओ और ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद करते रहो. No, you abound in your faith by thanksgiving. आपके विश्वास में आप मजबूत धन्यवाद देने के द्वारा होते जाओ. That's what it says here. ये वो यहाँ कह रहा है. Rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught, abounding in it, abounding in your faith with thanksgiving. कि तुम्हारे विश्वास में तुम धन्यवाद देने के द्वारा मजबूत होते जाओ, दृढ़ बनते जाओ. Which means when you're thankful, you're constantly thanking and praising God, you begin to abound in your faith. Your faith becomes to become more and more active.
उसका मतलब है कि जितना ज्यादा आप धन्यवाद दोगे उतना ज्यादा आपका विश्वास है वो मजबूत होता जाएगा और वो एक्टिव होगा। So if you want to abound and if you want to pray for a situation, तो अगर आपको बहुत धन्यवाद देना है और आपके इस परिस्थिति को के लिए प्रार्थना करनी है, if you want to abound in faith when you're praying for a situation, अगर आपको विश्वास में बढ़ना है और परिस्थिति के लिए प्रार्थना करनी है, begin to thank God for that situation being solved first. तो अपने आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए कि वो परिस्थिति सॉल्व हो गई है। Father, I thank you that it is your will that I prosper and be in health even as my soul prospers. धन्यवाद पिता कि आपकी इच्छा है कि मैं समृद्ध हूँ जैसा मेरा जो जीव है वो समृद्ध हो रहा है। I thank you, Father, that you know the plans that you have for me. Your plans are of good and not of evil. मैं धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपकी योजनाएं मेरे हानि के लिए नहीं लेकिन मेरे भले के लिए ही है, उसके लिए आपका धन्यवाद। Father, you have said that my family is going to be like a fruitful tree. My wife is going to be like a fruitful vine. My children are going to be like some fruits or something. तो धन्यवाद करता हूँ पिता कि जैसा आपका वचन कहता है कि मेरा परिवार एक फलवंत पेड़ के समान है, मेरी पत्नी एक फलवंत दाखलता के समान है और मेरे बच्चे एक फ्रूट्स के समान है, उसके लिए धन्यवाद। We both need to go back and read that scripture. Yeah, whatever pastor said. So you begin to thank God for what he's doing and what he said about that situation first. हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि उस परिस्थिति के लिए परमेश्वर ने क्या कहा है, उसके लिए उसको धन्यवाद देना है। If you skip this part अगर आप इसको छोड़ दोगे and you directly go to the problem, और आप पहले सीधा परिस्थिति के ऊपर जाओगे, प्रॉब्लम के पास जाओगे, I feel it might be sounding like the sound of mosquito in God's ear. तो आपको लगेगा कि वो ऐसा होगा कि परमेश्वर के कान में एक मच्छर का आवाज जैसे है उस प्रकार से होगा। You just feel like sweating it, no? आपको ऐसा लग रहा है कि अरे कौन है ऐसा आप करते हो। Thankfulness makes you abound in faith. धन्यवाद देना उसके द्वारा आपका विश्वास मजबूत होता है, बढ़ता है। Let's go back to Romans 1:21. हम फिर से जाएंगे रोमियो उसका 1:21। Here it says, though they knew him, though they knew God, तो यहाँ कह रहा है कि उन्होंने परमेश्वर को जाना, उनको परमेश्वर पता था, they did not glorify him as God. उन्होंने परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के रूप में नहीं की, उसको योग्य महिमा नहीं दी, Nor were thankful. और वो धन्यवाद भी नहीं दिया। You see, glorifying God and being thankful goes simultaneously. देखिए, परमेश्वर को महिमा देना और धन्यवाद देना दोनों साथ में चलता है। If you don't glorify God in your mind, if you don't exalt him, if you don't remind yourself of who God is, then there is nothing for you to be thankful of. अगर आप परमेश्वर का आपके मन में धन्यवाद देना नहीं जानते हो तो आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखेगी जिसके लिए आप धन्यवाद दे सकते हो। There are people who are bitter and hurt, and if you speak to them, it'll sound like there is no good thing left in their life. There is nothing that they can praise God for. And every time you speak to them, it's like क्या life है, क्या लाइफ है। तो कोई मनुष्य है जो पूरे कड़वाहट से भरा हुआ है, जब आप उनसे बात करते हो तो आप उनके बातों से जानते हो कि उनके जीवन में धन्यवाद देने के लिए कोई भी चीज बची नहीं है। Because they have not glorified God as being God in their minds, and therefore they can't see of anything to be thankful of. तो उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने परमेश्वर को परिस्थिति को बड़ा कर दिया परमेश्वर से, और परिस्थिति को उन्होंने महिमा दी, इसीलिए उनके मन में वो कड़वाहट भर गई। Let's go through this. हम इसमें से जाएंगे। It says they did not glorify him as God nor were thankful. तो यहाँ वचन कह रहा है कि उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, but became futile in their thoughts. परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। Futile is having thoughts that have no value. तो व्यर्थ का मतलब है कि ऐसे विचार जिसकी कोई कीमत नहीं है। Like, do you know why did God put the tree of knowledge of good and evil in the garden? आपको पता है क्या कि परमेश्वर ने क्यों ईडन गार्डन में वो वृक्ष जो समझ का वृक्ष है, सही और गलत के समझ का वृक्ष है, उसको क्यों रखा? Anyone knows? पता है किसी को? We also don't know. Yeah, and it's not for us to know. If God wanted us to know, God would have mentioned it very clearly why he put it there. तो हमारे लिए वो जानने के लिए भी नहीं है, क्योंकि अगर परमेश्वर को चाहिए होता कि हम वो जाने तो परमेश्वर ने उसके वचन में लिखा होता। So it's a futile thing. It's a thing that adds no value to our relationship with God. It adds no value to you growing in faith, and therefore it's not something that has great value in learning and growing in God. तो ये विचार करना कि परमेश्वर ने वृक्ष क्यों रखा, ये एक व्यर्थ विचार है, क्योंकि उसके द्वारा हमारा ना विश्वास बढ़ रहा है ना कुछ हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम व्यर्थ विचार में हमारा समय गवाएं।
And that's just one example. ये केवल एक उदाहरण है. But when a person is not glorifying God as God, and he's not being thankful, his thoughts turn futile and they get filled up with things that have no value, that have no eternal value. तो अगर हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं, उसको धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, तो हमारे विचार ऐसे व्यर्थ चीजों में लग जाते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है. When you're not glorifying God, then you're not thinking about God, right? जब आप परमेश्वर की महिमा नहीं दे रहे हो, उसका मतलब है कि आप परमेश्वर के बारे में सोच नहीं रहे हो. And you turn inward and you start thinking about you, and you start thinking about what is wrong with you, what is not there in your life, and you always see and magnify and glorify the things that are not working in your life. तो उस समय आप क्या कर रहे हो कि परमेश्वर को धन्यवाद न देख के आप खुद में देख रहे हो कि मेरे अंदर क्या कमी है, कौन सी चीजें मेरे अंदर काम नहीं कर रही है, और आप केवल यही सोचते रहोगे कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है. See, you can't say that, okay, I'm not glorifying God, but I'm not glorifying anything else also. I'm just neutral. आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मैं परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद के बारे में भी नहीं सोच रहा, मैं न्यूट्रल हूँ. ऐसा नहीं होता. Neutrality does not exist in the kingdom of God or even outside the kingdom of God. तो जो न्यूट्रल रहना वो परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर के राज्य के बाहरी संसार में भी नहीं होता. Because your mind works like a powerful magnifying glass. क्योंकि आपका जो मन है एक मैग्नीफाइंग ग्लास के समान काम करता है. You know, the only way you can do it is you can go in the Himalayas and join those sadhus who sit like that. एक ही तरीका है, अगर आपको न्यूट्रल रहना है तो आपको हिमालय में साधु बन के जाना पड़ेगा. They just feel that they are neutral. उनको लगता है कि वो न्यूट्रल है. But they get filled with all the demons, and they can then do many demonic things after that. लेकिन वो वहाँ पर जाकर पूरे शैतान जो दुरात्मा है उनसे वो भर जाते हैं, उनके द्वारा वो काम करते हैं. Because your mind is constantly going to focus and meditate and think on something or the other. आपका जो मन है हर समय कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज पे वो लगा रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहता है. So if you're not glorifying God as being God, if you're not glorifying how big God is in front of your situation, then you will begin naturally to focus and magnify and glorify your situation. अगर आप परमेश्वर को आपकी किसी भी परिस्थिति में आप परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे हो, उसको धन्यवाद नहीं दे रहे हो, तो अपने आप उस परिस्थिति को बड़ा करना शुरू करोगे, उसको महिमा देना शुरू करोगे. You ever meet some people and like you just feel like anointing of Samson should come and you just want to knock them out? आपको कभी ऐसा लगा क्या किसी मनुष्य से बात करते हुए कि जो शमशोन है उसका अभिषेक मुझ पर आना चाहिए, मैंने उसको एक मार के उसको गिरा देना चाहिए? It's like they have this amazing life, they have everything that they could ask for, and things are working amazing in their life, but they're always so focused on the things that are not working, and like the life that they are living is like a dream of some people, of children living on the streets. वो आप उदाहरण के लिए समझ लीजिए कोई ऐसा मनुष्य है जिसके जीवन में सब कुछ है, जैसा कोई दूसरा कल्पना भी नहीं कर सकता, उनसे बेहतर उनका जीवन है, फिर भी उनके पास क्या नहीं है वो वही बोलते रहते हैं. Because our mind is so powerful. क्योंकि हमारा मन इतना शक्तिशाली है. You've heard of these famous celebrities killing themselves. हम सुनते हैं कि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज है वो खुद को मार डाल रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं. They had everything that you and I are praying and fasting for. उनके पास वो सब कुछ है जिसके लिए हम आज उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं. And yet their minds were so powerful that they could meditate on something that they did not have, and they felt that their life is not worth living, and they killed themselves. फिर भी उन्होंने इन चीज़ों पर मनन करना शुरू किया कि जो उनके पास नहीं है, और अंत में उनको लगा कि मेरे पास नहीं है, इसके द्वारा मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली. Because when you do not glorify God as God, you're not thankful, your thoughts become futile. जब हम परमेश्वर को महिमा नहीं देते, उसको धन्यवाद नहीं देते, तो हमारे विचार व्यर्थ होता, हमारे पास व्यर्थ के विचार आते हैं. And they became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. तो वचन कह रहा है कि परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया. And you'll hear them saying the weirdest of things, and things in like weird in the terms of what we understand of God. They'll say the weirdest of things, and there is no peace in their heart. तो उन्होंने ऐसे बचकानी बातें बोलना शुरू किए कि जो यहाँ पर लिखी नहीं परमेश्वर के विषय में. I've met some of my close people, friends in office and all, and you see them
they're so futile in their imagination that they can just meditate on what is wrong in their life, and even an unbeliever has so many good things to meditate on. तो मैंने मेरे जो ऑफिस में काम करने लोग हैं, मेरे जो फ्रेंड्स, उनको देखा है कि उन्होंने जो व्यर्थ के जो चीज़ें हैं उस पर वो ज़्यादा विचार कर रहे हैं. Because if you're not glorifying God as being God, then there is literally nothing for you to pin your hope on. अगर आप परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे, उसको धन्यवाद नहीं दे रहे हो, तो आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है जिसके द्वारा आप में एक आशा आएगी. And see, this futility of the mind is so dangerous. तो ये मन में व्यर्थ विचार करना एक बहुत ज़्यादा डेंजरस है. It says they became futile in their thoughts and their foolish hearts were darkened. परंतु वो व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया. It means their minds became so vain that in that area of their life it became darkened, where no light of God was able to enter and restore that. उसका मतलब ये है कि वो इतना वो व्यर्थ विचार कर रहे थे कि उस क्षेत्र में पूरा अंधेरा छा गया उनके मन में, और परमेश्वर का जो ज्योति है वो भी उसमें प्रवेश न कर सकती. And when they see that situation, they feel like there is no way this can ever be solved, and that takes them more and more towards darkness. और वो उस परिस्थिति में ऐसा सोचना शुरू करते हैं कि कुछ भी यहाँ पर नहीं हो सकता, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, और वो अंधेरा और गहरा अंधेरा होते जाता है. And professing to be wise, they become fools. वचन 22, वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए. All of this could be avoided if they were simply glorifying God. ये सारी चीज़ों से वो बच सकते थे अगर उन्होंने परमेश्वर को महिमा दी होती तो. That's why it's very important that we praise God, we constantly magnify Him through good times, through bad times, we constantly magnify Him. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अच्छी परिस्थिति हो या विपरीत परिस्थिति हो, उसमें हम परमेश्वर को महिमा दे, उसमें हम परमेश्वर को धन्यवाद दे. It's literally like your spiritual pulse. वो आपके एक आत्मिक धड़कन के समान है. So anytime you catch yourself, you can become a doctor and see, अरे पल्स ठीक नहीं लग रहा, I need to start praising more. तो आप खुद को जान सकते हैं कि अरे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, चलो मेरे को परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करना है. Magnify God, glorify God in your mind regarding the very situations that you're facing. अपने मन में उस परिस्थिति के विरुद्ध परमेश्वर का बड़ा करना शुरू करो, परमेश्वर को आप महिमा देना शुरू करो. We'll go to Philippians 4:4. हम जाएंगे फिलिपियो उसका 4 और 4. Paul here is writing from the prison. पौलुस यहाँ पर इसमें कैद जेल में से लिख रहा है. He's literally in prison and he's bound, he is not free to go, and he writes from there and he says, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. यहाँ पर पौलुस के हाथ पर बंधे हुए है, वो जेल में है, फिर भी पौलुस यहाँ कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो. How can a man who's jailed for being innocent, he did not do anything wrong, he did not do anything to violate any other person, and he's still in jail, how can a person like that now rejoice? And he says rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. यहाँ वो मनुष्य है जिसने कोई भी अपराध नहीं किया, कुछ भी गलत काम नहीं किया, फिर भी उसको जेल में बंदी बनाकर डाल दिया गया है. वो मनुष्य कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो. I'll tell you how he can rejoice. मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप आनंद कर सकते हो. Because he glorified God to such a degree in his life that he gave his life entirely for the gospel. पौलुस ने परमेश्वर में इतना आनंद किया कि उस परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने अपने आप को पूरी तरह से सुसमाचार के लिए दे दिया. And when he is waiting to be killed by the Romans, now he's waiting and he writes saying, I cannot decide whether I want to die or whether I should live. तो यहाँ पर ये सब करने के द्वारा वो अब बैठा हुआ है, जब उसकी मृत्यु का जब रोमन्स लोग हैं उसको मारने वाले हैं, उसके लिए वो वेट कर रहा है. फिर भी वो कह रहा है कि परमेश्वर में आनंद करो. मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर रहूँ, इस धरती पर रहूँ, कि मैं स्वर्ग में जाऊँ. वो ऐसे इस कंफ्यूजन में है. A person who should be by all natural standards in that moment should be terrified, should be fearful for his life, should be spending every waking moment in terror कि अभी वो दरवाजा खोलेगा, he'll come and take me to kill me. जब किसी मनुष्य को पता है कि उसको अब मारने वाले हैं, उस समय वो हर क्षण में वो डर में रहता है. लेकिन पौलुस को हम देखते हैं कि वो डर में नहीं था.
Instead he's saying rejoice in the Lord, and again I say rejoice, and he's telling to Timothy, or I think to these guys only, to Philippians he says, I can't decide whether I want to live or die, and he says for me to live is Christ and to die is gain. यहाँ पर फिलिपियो में ही शायद वो कहता है कि यहाँ पर जैसे कहा कि वो जेल में है, वो उसकी मृत्यु का इंतजार कर रहा है, फिर भी कह रहा है कि प्रभु में तुम सर्वदा आनंद करो। आगे वो लिखता है कि मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं इस धरती पर रहूँ या स्वर्ग में जाऊँ, क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है, ऐसा पौलुस कहता है। How do you depress a man like that? इस प्रकार के मनुष्य को आप निराश कैसे करोगे? That guy doesn't care whether he lives or die. He's saying, even if I live, it's profitable. Even if I die, it's profitable. How do you depress a man like this? ये मनुष्य जो कह रहा है कि मेरे लिए मरना मसीह है और जीना मसीह है और मरना लाभ है, ऐसे मनुष्य को आप निराश कैसे करोगे? उसको निराशा में कैसे डालोगे? Let's go to Philippians 4:6. हम जाएंगे फिलिपियो 4 उसका 6 में। Here again he says, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. फिलिपियो 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। He's saying, be anxious for nothing, किसी भी बात की चिंता मत करो, but in everything that you face, give. The timer is for me? Okay. Good. In everything that you face, let your request be known to God through thanksgiving and with supplication. तो हर एक परिस्थिति में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। And when you do this, और जब आप ये करते हो, then the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। You can't say first God needs to remove all the anxiety, He needs to solve my problem, then I can rejoice, then I will experience peace. आप ऐसा नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने मेरी बेचैनी को मेरी सारी परिस्थितियों को बाजू में करना चाहिए, उसके बाद मैं परमेश्वर की शांति का अनुभव करूंगा। He's here telling you, if you are anxious, how do you come out of it? तो आपको वो बता रहा है कि अगर आप निराशा में हो, अगर आप बेचैनी में हो, तो बता रहा है कि आप उस बेचैनी से बाहर कैसे आ सकते हो। He's saying, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. तो यहाँ वो कह रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। And then the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. उसके बाद परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। Amen. आमीन। Let's go to another verse. और एक वचन हम देखेंगे, 2 Peter 3:1. दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका पहला वचन। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका पहला वचन। So here Peter says, beloved, I now write to you the second epistle, in both of which I stir up your pure minds by way of reminder. दूसरा पत्रस 3:1, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। So Peter is saying, I'm writing the second epistle to you. The purpose of my first and second epistle was this, that your minds might be stirred up by the way of reminder, by the way of remembrance. तो पत्रस यहाँ कह रहा है कि मैं तुम्हें दूसरा पत्र लिख रहा हूँ, किस लिए कि मैं तुम्हें सुधि दिलाकर तुम्हें शुद्ध मन को मैं उभारना चाहता हूँ। We'll read it in another version. हम दूसरे एक वर्जन में उसको पढ़ेंगे। Beloved, I'm now writing to you the second letter as the first one, and I'm stirring up your untainted mind to remind you. This is in Amplified. तो एम्पलीफाइड में से कह रहा है कि मैं तुम्हें दूसरा पत्र लिख रहा हूँ, जैसे मैंने पहले लिखा था कि मैं तुम्हारे जो
शुद्ध हुए मन है उसको मैं याद दिलाऊं, उसको मैं प्रोत्साहन दूं। So what he's basically saying is, by way of reminding yourself what God has done, by way of reminding yourself what God has said, what God has promised, you can stir up your mind. If you're feeling depressed, if you're feeling like you're losing everything, by way of just reminding yourself of how faithful God has been, you can stir up your mind and immediately faith will rise up on the inside of you. तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि आप आपके मन को वो चीज़ें याद दिलाकर आपके मन को आप प्रोत्साहन दे सकते हो, क्योंकि परमेश्वर कैसा विश्वास योग्य रहा है, परमेश्वर के वायदे को आप बार बार याद दिलाकर अपने आप को प्रोत्साहन, आपके मन को आप प्रोत्साहन दे सकते हो। You know, sometimes in the pursuit of achieving things, maybe by faith or without faith, in the pursuit of achieving things, we forget how faithful God has been in our lives. तो कभी कभी किसी चीज़ों के पीछे और किसी चीज़ों के पीछे हम जाते हुए, वो चाहे विश्वास से हो या हमारे मन के द्वारा हो, हम बहुत बार परमेश्वर को भूल जाते हैं। You might have seen some amazing works of God in your life, and then you try to believe for a headache and it does not get healed, and you become depressed over that. तो आपने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखा था, लेकिन आपका साधारण सा जो सिर दर्द है उसमें आपने परमेश्वर की चंगाई को नहीं देखा, तो आप निराशा हो जाते हो। That should not happen with us. ये निराश होना हमारे साथ नहीं होना चाहिए। We should constantly be reminding ourselves of the faithfulness of God, and through that our minds will be stirred, and it will cause us to constantly live in faith. हमें बार बार खुद को याद दिलाना है परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में। Colossians 2:7. कुलुस्सियों 2:7। Colossians 2:6 and 7 we'll read. कुलुस्सियों 2:6 और 7 हम पढ़ेंगे। As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him, अतः जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, rooted and built up in him, established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। तो उसका हिंदी में थोड़ा सा ये किया उन्होंने ट्रांसलेशन, तो उसका मतलब है कि विश्वास में तुम धन्यवाद करके, अधिक अधिक धन्यवाद करके तुम्हारा विश्वास दृढ़ होता जाए। You can stir up your faith by thanksgiving. तुम आपका जो विश्वास है आप धन्यवाद के द्वारा आप उसको प्रोत्साहित कर सकते हो। And you can also stir up your faith and your mind by way of reminding yourself and thanking God for what he has already done in your life. और आपके विश्वास को आप और प्रोत्साहित कर सकते हो जब आप अपने आप को याद दिलाते हो कि परमेश्वर किस तरह से विश्वास योग्य था आपके साथ में। Let's go to Matthew 6:22. मत्ती 6:22 22 मत्ती 6:22। It says the lamp of the body is the eye. यहाँ कहता है कि शरीर का दिया आँख है। Therefore, if your eye is good, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो, अच्छी हो, your whole body will be full of light. तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। But if your eye is bad, लेकिन अगर तेरी आँख बुरी हो, your whole body will be full of darkness. तो तेरा सारा शरीर अंधियारा होगा। If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? तो इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। The light that is supposed to be in a child of God, if that becomes darkness, here Jesus is saying how great is that darkness. अगर जो उजियाला जो परमेश्वर के बच्चों में होना चाहिए अगर वो ना होते हुए अंधकार होगा, तो यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो अंधकार कितना बड़ा होगा, कैसा बड़ा होगा। So you can have darkness all around you and you can still thrive in that area. आपके चारों ओर अंधकार होगा, फिर भी आप उस अंधकार में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। But if you allow darkness to come inside you, then even if you are in the middle of light and you're just standing in next to the sun, you can still shrivel up from the inside. अगर आपके जीवन में अंधेरा हो, तो अगर आप सूर्य के बाजू में भी खड़े होगे तो उस उजाले का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। And Jesus here said the lamp of the body is the eye. तो यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि शरीर का दिया आँख है। If your eye is good, your whole body will be full of light.
अगर तेरी आंख अच्छी हो, निर्मल हो, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। Your eye can be good when you focus your eyes or your mind on what God is doing and you constantly glorify Him. Your life will be full of light. Your body, your everything around you will become to flood with the light of God. आपकी आंख अच्छी तब होगी जब आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता को के प्रति, परमेश्वर के प्रति आप धन्यवादित होंगे, आप उसको महिमा दोगे, आप उसको आदर दोगे, तो आपकी आंखें अच्छी होगी, वो प्रकाशित होगी और आपके सारे शरीर में वो प्रकाश लेकर आएगी। But if your eye is evil, which means it's not focused on what God is doing, it's focused on what's happening in the world, it's focused on what is not working in your life, then your full body begins to fill up with darkness. अगर आपकी आंख बुरी हो का मतलब क्या है कि आप आपकी परिस्थितियों को देख रहे हो, उसकी ओर ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो आपका सारा शरीर भी अंधकार हो जाएगा। Amen? आमीन। So, you guys can do this as an exercise. आप ये एक एक्सरसाइज के रूप में कर सकते हैं। Just go home and sit in a place, just find some quiet time and just begin to write down what things you are grateful for that God has done in your life. तो आप क्या कर सकते हो, आप घर जाकर एक शांत जगह जाकर आप बैठिए, वहाँ पर परमेश्वर कैसे महान रूप से आपके जीवन में काम किया है आप अब लिखना शुरू कीजिए। And then any time you begin to feel your thanksgiving pulse becoming low, you can go and read that list again. और आप अगली बार जब भी आपको लग रहा है कि आपका धन्यवादित जीवन जो है वो नहीं है, आपकी आत्मा में जो आपकी हार्ट बीट है उसको आपको फिर से पकड़ने के लिए आप उस समय ये आपने जो चीज़ें लिखी है कि किस किस चीज़ के लिए आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हो, आप जाके पढ़िए। God specially commanded the children of Israel to build up memory क्या बोलते हैं उसको, monuments for reminders of what God had done for them. परमेश्वर ने जो इज़राइल के लोग हैं उनको कहा था कि तू ऐसे ऐसे चीज़ें करना ताकि वो तुझे याद दिलाए कि कैसा परमेश्वर तुम्हारे साथ विश्वास योग्य था। When they crossed river Jordan with Joshua, God told them to pick up 12 stones from right where there was supposed to be river, and this river was dried, it was divided. God told them to pick up these stones and pile them up so that will serve as a monument to remind what God did for them. तो जब यहोशुआ के साथ में जब इज़राइल के लोग यरदन नदी को पार करके आ रहे थे तो पूरी वो नदी सूख गई, तब परमेश्वर ने उनको बताया कि यहाँ से तू 12 पत्थर उठा के उनको खड़ा कर और वो 12 पत्थर एक मॉन्यूमेंट के समान तुमको याद दिलाएंगे कि परमेश्वर ने तुमको कैसे मिस्र में से बाहर निकाला और यरदन नदी पार करके तुमको वचन दिए हुए देश में कैसे उसने प्रवेश कराया। When David went up against Goliath, he went by stirring his mind through way of reminder. जब दाऊद गोलियत के विरुद्ध युद्ध करने के लिए गया तो उसने उसके विश्वास को कैसे उसने प्रोत्साहित किया कि उसने खुद को याद दिलाया परमेश्वर कितना भला है। He reminded himself saying, the same God who was with me when I killed the lion, the same God who was with me when I killed the bear is the same God who's going to make me chop your head off. उसने खुद को याद दिलाया कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने मेरे द्वारा उस भालू को हराया, उसको मारा, जिस प्रकार से परमेश्वर ने मेरे द्वारा उस सिंह को मारा, वही परमेश्वर मेरे साथ है जो तुझको मारेगा। One of my most precious possessions is my diary that I've maintained over the years. मेरी बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मेरे लिए है वो है मेरी डायरी। It's like there are some movies or series that you can go back and watch like 10 times, 20 times, 30 times. This is much more for me, much more dramatic for me than that. तो बहुत लोगों के लिए कोई पिक्चर होगा, कोई सीरीज होगी जो आप बार बार जाके देख सकते हो, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए मेरी डायरी है जिसको मैं बार बार पढ़ता हूँ। It's like I have like live action. It's like one day of getting the bad news, and this has happened so many times. I've gotten so many bad newses, but it's like I've written down, this is what I got today, and this is what I'm believing, this is what I said God is going to do, and the next time when God has resolved me out of it, or when in the middle when I'm not seeing anything, translate कर ले। तो वो डायरी में मैंने ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर ने, जब मेरे सामने कोई परिस्थिति आई, बहुत बार बुरी खबर मेरे पास आई, तो मैंने बुरी खबर को लिखा वहाँ पर, और मैंने लिखा कि मेरे पास आज ऐसी बुरी बुरी खबर आई है, लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। और जब आगे जाके जब मैं देखता हूँ कि परमेश्वर ने इस परिस्थिति को सॉल्व किया है, या फिर अगर मैं परमेश्वर का हाथ उस परिस्थिति में नहीं भी देख रहा हूँ, फिर भी
Yeah, so I'm waiting that, I'm not seen the promise till now, but I'm writing what I'm feeling, and then I say, but this is what I'm believing. And then cut to the end of the movie that this problem has now been resolved, and I write with all the exclamation marks of what God has done. तो अगर परमेश्वर के हाथ को उसमें नहीं भी देख रहा हूँ, फिर भी मैं लिखता हूँ कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। मैं मेरा विश्वास से मैं क्या चीज़ें देख रहा हूँ वो मैं लिखता हूँ, और अंत में जब परमेश्वर उस परिस्थिति को सॉल्व कर देते हैं तब मैं लिखता हूँ कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे इसमें से बाहर निकाला। And that has become one of my most precious possessions, because anytime I'm feeling low, anytime I'm feeling like, okay, things are not moving fast enough, I just go back and I start reading from top to down. और इसलिए वो मेरा बहुत महत्वपूर्ण मेरे लिए वो चीज़ है, क्योंकि जब कभी मेरे जीवन में कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही है या फिर मुझे थोड़ा निराश लग रहा है, तो मैं वापस जाकर वो चीज़ें पढ़ता हूँ कि कैसे परमेश्वर मेरे साथ विश्वास योग्य रहा। So I'll encourage all of you to, maybe just sit and write down what God has done, what you are thankful for, and just see how it makes you feel after that. इसलिए मैं आप सबको एनकरेज करना चाहूँगा, प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप घर जाइए, आप लिखिए कि किस प्रकार से परमेश्वर आप किन किन चीज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं। और जब आप कोई परिस्थिति से जाएंगे तो वापस आप इस डायरी के पास में आपने जो लिखा है उसको पढ़िए, तो देखिए आप कैसे खुद को वो याद दिलाते हो, आपका विश्वास कैसे मजबूत होता है। Amen. And you can write down before our 31st service, so you can come and just praise God genuinely, as raw as you can be, so that we'll actually, I believe, have a crazy encounter with God here on 31st. तो मैं चाहता हूँ कि आप 31 दिसंबर से पहले आप ये कीजिए, क्योंकि जब 31 दिसंबर को आप आओगे तो आपका मन पूरी तरह से स्तुति से भरा हुआ, धन्यवाद से भरा हुआ होगा, और जब हम यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति आराधना करेगा तो वो कुछ अलग लेवल की होगी। Sometimes when I read about what situations I was going through, and then I compare it with what I was worried about in the present day, it just feels like, this is such a tiny thing in front of what I've faced already. तो मैं जब पढ़ता हूँ कि जब मैंने उस परिस्थिति से जा रहा था, वो जो लिखा हुआ है उसको जब मैं तुलना करता हूँ कि आज मैं जिस परिस्थिति से जा रहा हूँ, तो मुझे आज की परिस्थिति बहुत छोटी लगती है, क्योंकि परमेश्वर ने भूतकाल में मेरे साथ विश्वास योग्यता से वो रहा है। So God commanded the children of Israel to build these monuments, and I believe that's a very much valid command for us as well. And build it in whatever fashion you like. For me it is just writing in my diary. Maybe one day I'll have a big property, we'll have all these pillars like I want. तो वो आपके लिए कुछ भी हो सकता है। जैसे इजराइल के लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा कि 12 पत्थरों को खड़ा करके एक मॉन्यूमेंट बनाओ, तो वैसा ही मुझे लगता है कि ऐसा याद करके परमेश्वर किस प्रकार से धन्यवाद, परमेश्वर किस तरह से हमारे प्रार्थना को उसने उत्तर दिया, वो सारे धन्यवाद की चीज़ें आप लिख सकते हो। आपके लिए कुछ और हो सकता है, जैसे मेरे लिए लिखना है तो मैं वो लिखता हूँ, आपके लिए कुछ और हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहो, उसको आप खुद को याद दिलाओ। और जब मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मेरा बड़ा प्रॉपर्टी होगा, उस समय मैं बड़े बड़े खंभों को खड़ा करूंगा, उन चीज़ों को दर्शाएगा जिस प्रकार से परमेश्वर मेरे साथ रहा, मेरी प्रार्थना को उसने उत्तर दिया। Let's just stand. हम सब खड़े होंगे। I mean, if we see God has been nothing but just good in our lives. हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से हमारे साथ में, हमारे जीवन में भला रहा है। He loved us when we were still sinners. We were enemies of God. In our mind, we were alienated from the life of God. हम जब परमेश्वर के दुश्मन थे, जब हम परमेश्वर के जीवन से अलग हो चुके थे, तब भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। And even after in that worst state, he sent his son and he proved his love on the cross, and he expressed his love forever. That monument can never be removed. वो परिस्थिति में भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसके पुत्र को हमारे लिए भेजा। वो जो मॉन्यूमेंट है वो कभी भी हमसे अलग नहीं हो सकता। And in Romans 5 it says that when we were sinners, if he loved us now much more, that we've become his sons. जब हम पापी होकर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, तो अब तो हम परमेश्वर के पुत्र हैं, तो हमसे कितना ज़्यादा प्रेम करेगा। And even though we've not lived a perfect life, and we all, if we look at ourselves, we all want to live better than where we have lived, yet not once has the Lord come and said, I'm disappointed in you today. हमने भले ही सिद्ध जीवन ना जिया हो, हमने बहुत गलतियां की हो, फिर भी प्रभु हमारे पास कभी आके उसने बोला नहीं कि मैं तुझसे निराश हूँ। That's the amazing heart of the Father. ये अद्भुत दिल है परमेश्वर का। He's been nothing but just good to us. वो केवल हमसे भला ही रहा है। And if you understand this, and if you process all of your life's hurts and heartaches with this, you will have a very healthy life.
अगर आप इसको याद रखते हुए आपको जो तकलीफें हो रही है, आपको जो बुरा लग रहा है, उसके साथ जाओगे तो आपको परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में दिखेगा. That when you lose someone very close, the very first thing that you remind and reassure yourself of is that God, this was not you, this was not your will, this was not you planning this is not somehow you failing. अगर आपके परिवार में से आपको कोई जो आप जिससे प्रेम करते हो वो मनुष्य अगर मर जाता है, तो सबसे पहली चीज़ आपको खुद को ये याद दिलानी है कि परमेश्वर, ये तेरी इच्छा नहीं है, तू भला है, ये तेरी इच्छा नहीं है उनके जीवन में, ना मेरे जीवन में. I don't know what went wrong. I don't want to know what went wrong. All I know and I want to focus is that you are good. There is no shadow of darkness in you. परमेश्वर, मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, किसके द्वारा उनकी मृत्यु हुई, और मैं जानना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं केवल ये जानता हूँ कि आप भले हो और आप में कुछ भी अंधकार नहीं है. There's one very powerful thing Bill Johnson had said, and I live my life by that. और बिल जॉनसन ने एक बहुत अच्छी बात कही है, और मेरा जीवन में मैं उस वाक्य के द्वारा जीना चाहता हूँ. He said, we can only praise God through pain on this side of the cross. हम परमेश्वर की स्तुति तकलीफें उठाते हुए क्रूस के इस साइड से कर सकते हैं. It says, bring sacrifice of praise to the Lord. वचन कहता है कि अपने स्तुति के अर्पण को परमेश्वर के पास लेकर आओ. Angels don't have the privilege to do that. जो स्वर्गदूत है उनके पास ये सौभाग्य नहीं है. They can praise God, but they can't praise God through pain, or they can't praise God because God rescued them. वो परमेश्वर की स्तुति तकलीफों में से जाते हुए, दुख दर्द में से जाते हुए नहीं कर सकते. And one day we'll all be in heaven and we'll be praising God endlessly, but the privilege and the opportunity to praise God through pain exists only on this earth. परमेश्वर की स्तुति दुख तकलीफों में से जाते हुए करना केवल इस धरती पर है, वो हमारा सौभाग्य है. स्वर्ग में जाके हमें वो दुख तकलीफें नहीं रहेंगी, हम उसकी केवल स्तुति करेंगे. And if you learn to praise God through your pain for the goodness of God, that He never changes, you'll become a very mighty warrior at heart. अगर आप परमेश्वर की भलाई को जानते हुए आपकी तकलीफों में से जाते हुए भी परमेश्वर की जब स्तुति करते हो, तो आप परमेश्वर के एक बड़े योद्धा बन जाते हो. And you'll see your reaction to bad news will start changing, and you'll react and aggressively take over that bad news with faith. तो जब आपके पास में कोई बुरी खबर आती हो, तो आप देखोगे कि आपका जो प्रत्युत्तर है, उसका प्रतिसाद है, वो बदल जाता है, और आप ज़्यादा आक्रामक होके उस परिस्थिति के विरुद्ध आप जाते हो. It's just like Paul, for me to live as Christ and to die as gain. ये वैसा ही जैसे पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना तो मसीह है और मरना लाभ है. So if I have a promise that is fulfilled in my life, I get to rub the devil's nose in that. अगर मेरे पास कोई परमेश्वर का वायदा है, उसका वचन है जो उसने पूरा किया है, तो मैं वो शैतान के मुख पे वो रगड़ सकता हूँ. And if I have a promise that is not yet fulfilled, or if I failed at the promise of God, I've not seen that promise come to pass. और ऐसा कोई वायदा है जो मेरे जीवन में मैंने पूरा हुआ तो नहीं देखा, मेरी गलती की वजह से कुछ भी हो, I get to turn that pain into this costly perfume that I can pour at God's feet and offer Him praise through that pain, which I can never do once I get to heaven. तो ये जो तकलीफ है, ये जो दर्द है, उसको मैं लेकर परमेश्वर के सामने एक अर्पण के रूप में मैं उंडेल सकता, एक सुगंधित अर्पण के समान में उंडेल सकता हूँ. We are so privileged. कितना सौभाग्य है हमारा. Father, we thank you for your love. पिता, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद. Father, we thank you that you never change, Lord. पिता, आपका धन्यवाद कि आप कभी नहीं बदलते. We thank you that you found us and you've kept us and you've preserved us, Lord. धन्यवाद पिता कि आपने हमें खोजा, आपने हमें ढूंढा और आपके पास में हमें आपने रख लिया. We thank you for all the wonderful works that you've done in our lives, Lord. धन्यवाद पिता जो अद्भुत काम आपने हमारे जीवन में किए. And we thank you for everything that you've planned ahead in this new year for us, Lord. धन्यवाद पिता हर एक चीज जो आपने आने वाले साल के लिए हमारे लिए रखी है. But above all, Father, we want to know you and we want to know the exceeding greatness of your power towards us, Lord. उससे भी ज्यादा परमेश्वर हम आपको जानना चाहते हैं, आपकी सामर्थ को जो हमारी समझ से परे है उसको. All of your blessings, all of the privileges of this world mean nothing if we don't have you, if we don't get to know you while we are living here, Father. सारे आशीषें कुछ भी काम की नहीं प्रभु, अगर हम आपको नहीं जान पाए तो. We thank you for your love that you're filling in us, and thank you for increasing the size of this family, and you're multiplying us, and each one is being trained
as a man, as a woman after your own heart, Father. धन्यवाद पिता आपके प्रेम के लिए कि जहाँ पर लोगों को आप बढ़ा रहे हो और हमें से हर एक को आप ट्रेन कर रहे हो कि हम आपको जान पाए. That we will no longer be crybabies or moody Christians, but we will be mature sons and daughters of God. कि हम रोते हुए बच्चे के समान नहीं रहेंगे, लेकिन एक प्रौढ़ क्रिश्चियन के रूप में रहेंगे. Firmly established in your word, in your heart, in the Holy Spirit, walking in the very will that you have for us, Lord. कि आपके वचन में स्थापित होकर पवित्र आत्मा के चलाए हुए हम आपके वचन पर चलेंगे. Thank you, Father, for all your goodness. Thank you that your goodness never ends. Your mercies are new every day, Lord. धन्यवाद पिता आपकी भलाई के लिए, आपकी दया के लिए जो रोज नहीं होती है. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Thank you for being so amazing to us. धन्यवाद पिता, इतने अद्भुत हो आप हमारे लिए. Holy Spirit, we thank you for filling our heart with gratefulness. धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमारे दिलों को आपने धन्यवाद से भर दिया है. Jesus, we love you. यीशु हम आपसे प्रेम करते हैं. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. आमीन.